Okay, so let us begin with today's session. So, in the previous session, we studied about Hora. Okay, so another important concept, like in last session, I told you that there are 5 elements of Panchang: Var, Tithi, Nakshatra, Yog, and Karan. Okay, so in the last session we studied about Var and Hora, how Hora decides the Var. Okay, so in today's session we will study about Tithi. So any idea how many Tithis are there? You know what is Tithi? So you can unmute and tell me, any idea how many Tithis are there? तिथि एज इफ पंचमी, षष्ठी, द्वादशी, एकादशी, अष्टमी। आई एम श्योर। 15, जी कितनी होती हैं तिथि? 15, 15। राजेश जी, कैन यू गेस हाउ मेनी तिथिज आर देयर? Yeah, 15, 15, 15। ओके, 15. सो सो वी ऑल नो कि 1 से लेके 14 तक होती हैं। प्रतिपदा प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, ऐसे करते करते 14 तक होती है। देन वी हैव आइदर पूर्णिमा और आइदर अमावस्या। वी डोंट हैव लाइक वी हैव कोई 15वीं तिथि नहीं होती हमारे पास, या तो अमावस्या होती है और आइदर वी हैव पूर्णिमा। सो वी हैव 16 तिथि, 14, 1 2 3 4 से 14, देन पूर्णिमा, then in other sequence we'll have amavasya. So technically we have 16 tithi, not 15, because amavasya and purnima are different. Okay, so let me just share the slide. Okay, you can't see the slide, let me just share it. Okay, so these are the 16 tithis. Pratipada is tithi 1, then द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी. Then there is no Panchdashi. It's Purnima, which is the full moon, and then the 16th is Amavasya. Okay, like the cycle of, although the cycle of Purnima is different and cycle of Amavasya is different. So let us understand ये तिथि बनती कैसे, हाउ आर टेक्निकली व्हाट आर दीज तिथिज. सो लेट मी शेयर समथिंग एल्स. ओके, सो दिस इज सन, यू कैन सी दिस येलो. मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ. मुझे आप लोग का दिख नहीं रहा, प्लीज़ आप लोग माइक ऑफ करके मुझे रिस्पॉन्स दे सकते हैं. सो दिस इज सन, दिस इज अर्थ, एंड दिस इज मून. ओके, नाउ व्हाट आर तिथीज? तिथीज क्या होती हैं? अब इधर आप, मैं इसको स्टार्ट रीसेट करता हूँ पहले. अब देखिए, इस केस में, इन दिस केस सन इज हेयर, इधर मून है, एंड अर्थ इज हेयर. नाउ दिस सन, सॉरी, द मून मेक्स 0 डिग्री एंगल. अभी अगर हम एक लाइन बनाए अर्थ और सन के बीच, we have a line segment between earth and sun, so, and there is a different line segment between moon and earth. Okay, so there are two lines. मैं इसको थोड़ा सा प्ले करके दिखाता हूँ. See, there are two lines, one is between sun and earth and another is between moon and earth. तो इस सिचुएशन में the angle between these two lines is 0. This can be seen easily. ये एंगल 0 है, ठीक है. नाउ मैं इसको थोड़ा सा, नाउ अब ये देखें थोड़ा सा मूव कर गया, तो एंगल इज नाउ 15 डिग्री. नाउ ये थोड़ा सा और मूव कर गया, नाउ एंगल इज अबाउट 60 डिग्री. यहाँ पे देखते हैं
Now what is it saying? It is showing Panchami Tithi. Now just watch this Tithi and this angle here. Sun moon angle and the Tithi. स्पीड इसकी स्लो कर देता हूँ मैं. Now what is happening? As the angle is increasing, Tithis are changing. Now here we have got Amavasya. Here we have got Amavasya. After 180 degree, it has crossed Amavasya. Now Pratipada, Dvitya, Tritya, Chaturthi, Panchmi, Shashti, Saptami, Ashtami and so on. फिर लास्ट में क्या आएगी? लास्ट में अगेन वी विल रीच what? Purnima. Sorry, here it will be Amavasya, here it will be Purnima. 0 degree will be Purnima. Sorry, 0 degree will be Amavasya and 180 degree will be Purnima. So what is the logic behind this? The thing is, when the moon is just at 0 degree, then we have Amavasya. We cannot see the moon because पूरा सन का लाइट उसका दूसरी तरफ पड़ रहा होगा. ओके, सो वी विल नॉट बी एबल टू सी द मून. सो दैट इज अमावस्या. सर 0 डिग्री में तो पूर्णिमा था ना? नहीं नहीं, 0 डिग्री पे इज अमावस्या बिकॉज ऑल द लाइट विच इज कमिंग, जो सन की जितनी भी लाइट है वो इस फेस पे पड़ रही है विच इज अवे फ्रॉम द अर्थ. जी जी. 180 डिग्री पे पूर्णिमा है. ये देखो, यहाँ से 0 से 0 पे अमावस्या है और यहाँ से हमारा शुक्ल पक्ष शुरू होता है. सो वी हैव टू पक्ष. 0 to 180 is शुक्ल पक्ष and 180 to again 0 is Krishna paksh. Why this is known as Shukla paksh? Shukla paksh means when light is increasing, or Krishna paksh, Krishna means dark, when light is decreasing. हमने क्या किया, पूरे 180 डिग्री को, ये 180 डिग्री को 15 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया क्योंकि हमें 15 तिथियां चाहिए थी. हमने 15 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. Now 180 divided by 15 is 12. Okay, so after every 12 degree, so 0 to 12 degree is first tithi, which is Pratipada. As it crosses 12 degree, so 12 to 24 degree is Dvitiya. Then as the moon crosses 24 degree, as soon as it crosses 24 degree, now we have Tritiya until it reaches 36. The moment it crosses 36 degree, we have Chaturthi until it reaches 48. The moment it crosses 48, we have Panchami. ऐसे करते करते we will reach 180 degree until like the last is 168 degree to 180 degree. That is Amavasya. As soon as it crosses 180 degree, then we have Pratipada. तो ये 0 to 180 डिग्री जो था दैट इज शुक्ल पक्ष. जब 180 डिग्री पे आएगा देन इट विल बी पूर्णिमा. तब हमें पूरा मून दिखेगा क्योंकि यहाँ पे वो सन की पूरी रेज उस मून पे पड़ेंगी तो हमें पूरा मून दिखेगा. अब अभी तक हमारे मून की लाइट इंक्रीज हो रही थी. अमावस्या से पूर्णिमा तक हमें धीरे 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 लाइट इंक्रीज हो रही थी. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज शुक्ल पक्ष. व्हेन इट हैज रीच्ड पूर्णिमा, नाउ लाइट विल डिक्रीज. अब मून छोटा होने लगेगा, इट विल स्टार्ट बिकमिंग डार्कर. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कृष्ण पक्ष. नाउ अगेन 180 डिग्री टू 192 डिग्री it will be Pratipada. Then 192, as the moment it crosses 192, then 192 से लेके जो आ गया 204 degrees, right? 204 degrees, then Dvitiya and so on करते करते again it will reach 360. 360 is 0, 360 degree or 0 degree. Then again Purnima will Amavasya will start. So this is how this goes on.
दिस कैरीज ऑन। ये आपको अभी समझ में आया? अभी इसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, मतलब ये पर मोटा मोटा आई थिंक शुड बी क्लियर टू एवरीवन। इसमें एनी डाउट टू एनीवन? राजेश जी, पूर्णिमा और अमावस्या वाला समझ में आ गया आपको? जी समझ गया सर। ठीक है, 0 डिग्री पे अमावस्या होती है और 180 डिग्री पे पूर्णिमा। क्योंकि 0 डिग्री पे तो वो बीच में आ गया ना, सन उसकी सारी लाइट दूसरी तरफ दिख पड़ रही है, सन की सारी लाइट मून के दूसरी तरफ है, हमें दिख नहीं रहा। ठीक है, ओके। अब इसमें हमें ये एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि हमें ऐसा, इस व्यू में हमें ऐसा लग रहा है, इन दिस व्यू इट फील्स एज इफ ओनली मून इज मूविंग। ओके, नाउ देर आर, यहाँ पे इसमें थोड़ा सा लाइट आ गया है, देर दो तरह के रेवोल्यूशंस हैं मून के। एक, जब वो जैसे जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, मैं इसको प्ले करता हूँ, यू विल अंडरस्टैंड। यहाँ पे देखो, मून यहाँ से स्टार्ट हुआ था, मून हैज स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम दिस पॉइंट, नॉट दिस पॉइंट। अभी क्या हुआ है, just observe the movement of sun also, as the moon is moving, just observe the movement of sun also. You can see the sun is also moving. In actual, sun is not moving. The actual में something like this is happening. I'll play this. Actual में ऐसा हो रहा है, earth is moving. अब मान लेते हैं अगर अर्थ मूव नहीं कर रही होती और मून यहाँ से शुरू हुआ है, मून यहाँ से चक्कर लगाना शुरू हुआ है, नाउ अर्थ इज नॉट मूविंग, sun is not moving, just moon is moving. Okay, so moon will start from here and it will come back to here itself, right, in space. So it will take 27.3 days to complete this revolution. This is known as sidereal month. When we are talking, मैंने एक लास्ट मतलब एक प्रीवियस क्लास में ही बताया था, when we say sidereal it means with reference to star. Okay, विद रेफरेंस टू स्टार, मतलब विद रेफरेंस टू फिक्स पॉइंट, मतलब अगर वो यहाँ से शुरू हुआ तो वो वहीं ये फिक्स पॉइंट पे ही इसी पे आके ख़त्म होगा। बट इन एक्चुअल व्हाट इज हैपनिंग, अर्थ इज मूविंग, अर्थ इज ऑल्सो मूविंग, राइट, अर्थ इज ऑल्सो रिवॉल्विंग अराउंड द सन। सो ड्यू टू दिस, जब मून यहाँ पे पहुँचेगा, अर्थ वुड हैव मूव अ बिट फॉरवर्ड, सो उसका अर्थ फिक्स होती तो वो एक पूरा 360 डिग्री पूरा हो जाता। बट नाउ सिंस अर्थ हैज ऑल्सो मूव फॉरवर्ड, तो ये लाइन थोड़ी सी स्ट्रेट हो जाएगी, तो इट विल हैव टू मूव ए बिट मोर फर्दर, उसको थोड़ा सा और डिस्टेंस एक्स्ट्रा मूव करना पड़ेगा। ये एनिमेशन आप गौर से देखेंगे तब यू विल अंडरस्टैंड। You can see this line is also moving, na, this line is also moving, so moon has to move some extra distance, right? Are you getting this point? यस सर। ठीक है, so moon has to move some extra distance, so this is, जब ये अर्थ और सन के बीच में जो लाइन है उसको दोबारा मीट करेगा, then we will call that to be 0 degree as per the तिथि थिंग। ओके, तो इस 360 डिग्री को क्रॉस करने के लिए मून टेक्स अराउंड 29.5, अप्रॉक्सीमेटली 50 डेज, समथिंग अराउंड 29.5 डेज। सो दैट्स वाई वी हैव डिवाइडेड आवर मंथ इनटू 30 पार्ट्स, which is like Shukla Paksh and Krishna Paksh, and this is as per this moment. Or sidereal month has 27.3 days. That's why our rishis have divided our zodiac, because moon हमारा पूरा zodiac में दिखाएगा, तो मतलब मून को पूरा zodiac क्रॉस करने के लिए 27 डेज लगते हैं, तो that means that's why our rishis have divided our zodiac into 27 nakshatras.
Okay, this is also one of the logic why our rishis divided our zodiac into 27 nakshatras. Or nakshatras are also known as lunar mansions. In English, they are known as lunar mansions. And uh, there is a story that Moon was married to 27 nakshatra. Nakshatras were the daughters of Daksh Prajapati, and there is a story about that. Okay, so maybe if we'll get time, we'll discuss this story. Also, when we'll understand the planet, so it is very helpful when you know the mythological stories behind the planets. So it is easier to understand the properties of the planet when you know the stories of the planet. Okay, so we might discuss few stories also. So this will help us understand the planets, how they behave when they are with, say, if Saturn is with Sun, how it will behave, what is the relationship between Saturn and Sun. If Saturn is with Mars, how will it behave, what is the relation. Okay. Okay, so I hope this point is clear, the difference between sidereal month and synodic month. Okay, sidereal month means if Earth would have not been moving, then how much time does it take to take full 360-degree round? That is known as sidereal month, and that period is around 27 days, 27.3 days. And since the Earth is also moving, so Moon has to travel some extra distance, and that is approximately equal to 2 days 2 to 3 days extra. So it takes around 29.5 days, so approximately 30 days. So that's why we have divided our tithis into 360, sorry, 30 days, 30 parts. Okay, so that's why we have, in Shukla Paks we have from Pratipada to it ends at Purnima, and in Krishna Paksh it starts with Pratipada and it ends with Amavasya. Okay, so this astronomy thing regarding the tithi is clear to you. Any doubts in this? ये समझ में आ गया सबको ना कि तिथि कैसे, why the tithi is important. See, our Hindu calendar is very scientific. The calendar that we follow is actually for convenience, but the Hindu calendar is very scientific. Okay, when you actually understand the Hindu calendar, okay, one problem that we often see when we see like whenever there is a त्योहार, then we often get confused कि आज कौन सी तिथि है, अष्टमी है कि नवमी है. अष्टमी नवमी कहीं कभी कभी एक साथ हो जाती हैं, कभी कभी दो अष्टमी पड़ जाती हैं. सो डू यू अंडरस्टैंड वाई दिस हैपन्स? कभी कभी दो अष्टमी कैसे पड़ जाती हैं, और कभी कभी ऐसा क्यों होता है कि अष्टमी के बाद सीधा दशमी आ गई. सो दिस इज नोन एज तिथि क्षय. जब एक तिथि बीच में गायब हो जाती है, इज नोन एज तिथि क्षय. एंड कभी कभी एक तिथि दो बार पड़ जाती है, तो इसको बोलते हैं तिथि वृद्धि. ओके, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई दिस हैपन्स. ओके, now look at this visualization chart. Okay, now this is the normal case. Now we have the sunrise here. सनराइज से अब तिथि लगती कब से है? लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट प्रतिपदा. प्रतिपदा कब से शुरू होगी? 0 डिग्री से. एंड व्हेन द प्रतिपदा विल एंड व्हेन मून रीचेस 12 डिग्री. ओके, सो 0 डिग्री 12 डिग्री, जब ये जो दोनों लाइन सेगमेंट्स थी हमने जो देखी थी, उनके बीच का एंगल 0 से 12 डिग्री का होगा, देन इट विल बी प्रतिपदा. एज सून एज इट क्रॉसेस 12 डिग्री, there will be Dvitiya. Okay, so similarly, let's say there is Dashmi Tithi here. Dashmi started at this point and ended at this point. This point means मतलब ये timing दे रखा है. Now sunrise was somewhere here. Okay, or day 1, like some date है, it's for first date, sunrise was somewhere here, and for second date sunrise was somewhere here. Now you can see sunrise से पहले
during the sunrise we had dashmi, so on first we had dashmi. So first मतलब during at the time of sunrise whichever tithi was there we will consider that on that date that is the तिथि. मतलब 1 तारीख को सनराइज के वक्त अगर दशमी है तो फुल डे वी विल कंसिडर दैट 1 तारीख को 1 तारीख इज दशमी. ओके 2 तारीख को सनराइज के वक्त अगर एकादशी है, यू कैन सी एकादशी स्टार्टेड बिफोर सनराइज, बिट बिफोर सनराइज एंड ड्यूरिंग द सनराइज इट वाज एकादशी, तो सेकंड डेट को इट इज एकादशी. सिमिलरली थर्ड डेट को, इसमें सन मिसिंग है, थर्ड डेट को इट इज द्वादशी. ओके so this is the normal case. Now let us understand the case of tithi vriddhi. Now what is happening here? Okay, during the sunrise during the sunrise ekadashi just ekadashi happened. Okay, like 1 तारीख को सनराइज से जस्ट थोड़ा सा पहले ही एकादशी शुरू हुई थी, तो 1 तारीख को क्या होगी एकादशी, राइट, बिकॉज ड्यूरिंग द सनराइज एट द टाइम ऑफ सनराइज इट वाज एकादशी. ठीक है. नाउ अब होता क्या है, ये जो 12 डिग्री जो मूवमेंट ऑफ ये जो है हमारी मून की, इट इज़ नॉट कांस्टेंट, कि ऐसा नहीं है कि 12 डिग्रीज को 24 आवर्स ही लगेंगे. ये वेरी करती है, कभी कभी 22 आवर्स भी लग सकते हैं, कभी कभी 25 आवर्स भी लग सकते हैं. ओके सो दिस मूवमेंट वेरीज. ओके the revolution speed it varies, like this movement varies. So अभी क्या हुआ, जब ड्यूरिंग द सनराइज ऑन डे 1 ड्यूरिंग द सनराइज इट वाज एकादशी, एकादशी जस्ट स्टार्टेड. अब ये एंगल चेंज होने में लाइक उसको लग गए, इसमें 27 आवर्स लिया है. आई थिंक 27 आवर्स इज अ रेयर केस, इट जनरली लाइक 25 26 25 एंड हाफ समथिंग लाइक दैट इट हैपन्स. ओके तो उसको जस्ट नेक्स्ट सनराइज के बाद हुई, नेक्स्ट सनराइज के बाद वो एकादशी क्लोज हुई. सो दैट बट ड्यूरिंग द ऑन डे 2 सनराइज पे भी एकादशी थी. आर यू गेटिंग दिस? किसी को समझ में आ रहा है? अरे भाई राजेश जी, निधि जी, कभी समझ में आ रहा है आपको? जी हाँ. तो हुआ क्या, सेकंड डेट को ड्यूरिंग सनराइज भी एकादशी थी, फर्स्ट डेट को भी ड्यूरिंग सनराइज भी एकादशी. तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही डेट पे हम कहेंगे कि एकादशी थी. ओके सो 2 एकादशी पड़ गई. ओके और तो कभी कभी कैसा होता है कि ये एकादशी छोटी हो गई, तो सनराइज फर्स्ट डे को सनराइज होने के बाद एकादशी शुरू हुई और सेकंड डेट को सनराइज होने से पहले ही एकादशी खत्म हो गई. तो फर्स्ट को दशमी थी और सेकंड को हमारी द्वादशी पड़ गई, एकादशी आई ही नहीं, क्योंकि हम लोग वो डेट कंसीडर करते हैं जो सनराइज के टाइम हो रही होती है. ओके दिस इज नोन एज तिथि क्षय, क्योंकि सनराइज के टाइम दशमी थी, दशमी के जस्ट बाद एकादशी शुरू हुई, बट सनराइज के टाइम तो दशमी थी, तो हम कहेंगे 1 तारीख को दशमी है ना. 2 तारीख को सनराइज से पहले ही द्वादशी शुरू हो गई थी, तो हम कहेंगे 2 तारीख को द्वादशी है, तो एकादशी बीच में पड़ी ही नहीं. ओके सो दिस गॉट स्किप्ड, सो दिस इज नोन एज तिथि क्षय. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ तिथि क्षय एंड तिथि वृद्धि. ये क्लियर है? इसमें कोई डाउट? सर. ओके सो ये हमने पढ़ लिया है कि 2 पक्ष होते हैं. ओके शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष. वैक्सिंग मून, इसको शुक्ल पक्ष को वैक्सिंग मून भी कहा जाता है और कृष्ण पक्ष को वेनिंग मून भी कहा जाता है. ईच पक्ष है 15 तिथि, ये हम पढ़ चुके हैं. ओके नाउ एवरी तिथि हैज इज लॉर्ड. हर एक तिथि का एक, सर आप 16 था ना, 16. हाँ 16 हमारा इसलिए हो गया ना क्योंकि अमावस्या को भी हमने
क्योंकि 15 तिथि नहीं होती, या तो पूर्णिमा होती है या अमावस्या होती है। एक पड़ेगी शुक्ल पक्ष में, एक पड़ेगी कृष्ण जी पक्ष में, पर ये 14 तिथि तो कॉमन हो गई। ये शुक्ल पक्ष में भी पड़ेगी, कृष्ण जी जी पक्ष में भी पड़ेगी। जी समझ में आ गया 16 का क्यों बोला गया? जी ठीक है। और ये हर एक तिथि को एक लॉर्ड दे दिया गया है। जैसे प्रतिपदा का स्वामी है अग्नि, द्वितीया का ब्रह्मा, तृतीया का गौरी, ऐसे हर एक तिथि को एक लॉर्ड दे दिया गया है। ये मतलब कुछ लोग, मतलब देर आर सम तिथिज आर सो इम्पोर्टेंट, दिस तिथिज एंड पंचांग आर सो इम्पोर्टेंट दैट सम एस्ट्रोलॉजर्स डू, मतलब वो प्रिडिक्शन सिर्फ तिथिज के बेसिस पे ही कर देते हैं। तिथि, योग, करण, इनके बेसिस पे ही वो आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन बता देंगे कि आपको शायद वो चार्ट तो शायद बाद में देखेंगे या देखेंगे भी ना देखेंगे, सिर्फ तिथि, योग, करण, नक्षत्र, इनके बेसिस पे ही आपको वो काफ़ी चीज़ें बता सकते हैं। ओके, देर आर, आई नो some astrologers who do a lot of their prediction based on this panchang only. So उनके लिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सी तिथि का क्या लॉर्ड है, बिकॉज इनके बेसिस पे यू कैन डू अ लॉट ऑफ प्रिडिक्शंस। एंड अमावस्या का लॉर्ड है पितृ, इसलिए आपने कभी देखा होगा कि कुछ लोग पितृ तर्पण करते हैं। तो अमावस्या पे जैसे जो हमारे जो पितृतर्पण जो पीरियड आता है वो तो आता ही है, और बट नॉर्मली भी आपको अगर पितरीज को दान कुछ भी देना होगा तो वी डू इट ऑन अमावस्या। पितरीज मीन एंसेस्टर्स। ओके, तो दीज लॉर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे हैव देयर इम्पोर्टेंस इन देयर प्रिडिक्शन सिस्टम। Okay, why lords matter? Because of course due to muhurat, in there is a system of astrology known as prashna astrology. Prashna astrology क्या होता है कि let's say you don't have a chart, और let's say आप कुछ इस तरह का क्वेश्चन लेके आए हैं कि मेरा कुछ गुम हो गया है, वो किधर मिलेगा। और ऐसे स्पेशली जो पुराने लोग होते हैं उनके पास तो चार्ट होता ही नहीं है, मतलब उनको तो ये भी नहीं, एग्जैक्ट डेट भी नहीं पता होती कि हम कब हुए थे, कब पैदा हुए थे। तो इस तरह के केसेस को कैसे सॉल्व किया जाता है? इस तरह के केसेस के लिए देर इज़ एन ब्रांच ऑफ एस्ट्रोलॉजी नोन एज प्रश्ना। प्रश्ना में क्या होगा, एट द टाइम, लाइक आप जब एस्ट्रोलॉजर के पास आए उस वक्त ट्रांजिट देख के उस वक्त का जो चार्ट क्या है उसके बेसिस पे एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्शन देता है। एंड दैट इज, मतलब दिस इज अ होल साइंस ऑन इट्स ओन। मतलब ऐसा माना जाता है कि देर इज सम डिवाइन इंटरवेंशन वाई दैट क्वेश्चन हैज़ बिन आस्क्ड ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम टू द एस्ट्रोलॉजर। सो देर इज सम डिवाइन इंटरवेंशन विच इज गिविंग एक्चुअली द आंसर, और उस बेसिस पे देर आर सम वेरी एक्यूरेट प्रिडिक्शंस कैन बी डन। Okay, so that is known as prashna. So tithis are used on that also. Then it influences the nature of day, provides clues for born on tithi personality. Now there is another classification of tithi which is known as nanda, bhadra, jaya, rikta, purna. Like 1 6, मतलब ये 5 5 के गैप पे आती हैं, जैसे प्रथमा, षष्ठी और एकादशी, दीज आर नोन एज नंदा। द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी, दीज आर नोन एज भद्रा, and so on. You can take a screenshot of this chart or I will share it in the group. ये भी एक क्लासिफिकेशन होता है तिथि का, और इन पे भी मतलब ये भी मुहूर्त के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मतलब ऐसा माना जाता है कि रिक्ता पे हमें कुछ अच्छा काम नहीं करना चाहिए। जैसे रिक्ता तिथि जो होती है इज़ नॉट गुड, मतलब इफ़ यू आर स्टार्टिंग एनी गुड थिंग, सो वी शुड डेफिनेटली अवॉइड रिक्ता तिथि। नंदा इज़ गुड, सो नंदा पे इफ़ यू वांट टू डू समथिंग, इट इज़ रियली, मतलब नंदा है तो वी कैन स्टार्ट। नंदा मीन्स प्रथमा, षष्ठी और एकादशी। सो देर आर सम रूल्स लाइक बेस्ट नंदा, भद्रा एंड पूर्णा, दीज 3 तिथि, इनमें से जो ये 5 का है, इनमें से ये 3 ग्रुप, दीज आर गुड फॉर ऑल ऑस्पिशियस एक्टिविटीज़। जया इज़ गुड फॉर बैटल्स, लाइक कुछ लड़ाई करने जाना है, कुछ लीगल फाइट है या कोई केस सुलझाने जाना है, उस तरह के कोई कंपटीशन है, उस तरह की चीज़ों के लिए यू शुड
if you are given a choice, you should go for Jaya Tithi. And Rikta is like you should avoid it for new ventures. It is good for removal or destruction oriented task, like अगर आपको कुछ तोड़ना फोड़ना या कुछ डिस्ट्रक्ट करना है या कहीं से कुछ हटाना है, मतलब इस तरह की चीज़ के लिए रिक्ता इज़ गुड. बट फॉर गुड थिंग्स, फॉर पॉजिटिव, फॉर कंस्ट्रक्टिव थिंग्स, यू शुड अवॉइड रिक्ता. Okay, so then you can also judge the personality of a newborn based on which tithi he is born. Like if he is born on Nanda, then he would be generally cheerful, sociable person. Bhadra should be practical person. Jaya should be strong, he should be competitive. Rikta Rikta is again not a very thing, but he would be highly spiritual, but he may face struggles, early life struggles. Okay, Purna is balanced, kind of a content, a successful person. So all about the this is all about the tithis. This is all about the तिथिस में किसी को कोई डाउट है? बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि तिथि होती कैसे हैं. देर इज़ वन मोर थिंग, हाउ टू फाइंड अ तिथि. सो there is something known as ephemeris. Okay, now ephemeris are not used so much, like astrologers don't need ephemeris as such, because these days we have softwares जहाँ से सीधा हम डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डालते हैं और वो सीधा दे देता है डेटा. बट व्हाट आर एफेमेरीज? एफेमेरीज बेसिकली आपको ये बताते हैं कि इस वक्त कौन सा प्लानट कौन से लॉन्गिट्यूड पे है. ठीक है, वो आपको एग्जैक्ट लोकेशन बता देते हैं. वो पूरे टेबल्स होते हैं. एफेमेरीज आर टेबल्स विच टेल्स यू कि एट व्हाट टाइम विच प्लानट विल बी एट विच लोकेशन. दी सॉफ्टवेयर्स ऑल्सो यूज एफेमेरीज एट देयर बैक एंड. ओके, ये लोग भी पूरा एफेमेरीज से डेटा लेके देन दे मेक द चार्ट. ओके, सो लेट्स से यू हैव टू फाइंड, you are given the longitude of sun and moon. Okay, these are the two things that you required to find तिथि. तो सन और मून के लॉन्गिट्यूड के जो डिफरेंस होगा, ओके, बिकॉज हमने देखा था कि सन और, क्योंकि मून तो जा ही रहा है, सन भी मूव कर रहा है. नाउ वी आर टेकिंग अर्थ एज रेफरेंस. ओके, तो हमें ऑल्दो अर्थ मूव कर रही है, बट हमें तो ऐसा लगता है कि अर्थ इज स्टिल एंड सन इज मूविंग एंड मून इज मूविंग. नाउ हमें ये देखना है कि, अगेन मैं आपसे ये शेयर कर देता हूँ. ये देखिए, दिस इज हीलियोसेंट्रिक व्यू. दिस व्यू टेल्स व्हेन सन is in center and earth is moving. Now I am changing the view to geocentric. Now it shows it, earth is stable and sun is moving and moon is moving. Now just watch this. Now see, up this is what we are observing. This is not actually what is happening, but since we are on earth, so we feel that sun is moving and moon is moving. So we have to find the angle between the sun and the moon. So this angle is say 235 degree. Okay, so what we have to do is we have to find the longitude of sun, we have to find the longitude of moon. See here, the calculation logic is given. If you can see, I don't know if you can see it, let me just zoom in. Moon's longitude is given, sun's longitude is given. Okay, and the difference between two is found out. Okay, and the tithi is difference between the two divided by 12 plus 1. Why 12 divided by 12 plus 1? Let's say, so at pratipada it should the tithi is 1. Okay, so and difference between two is 0 degree. So we have difference between, let's say this is 0.1 divided by 12 plus 1. 0.1 divided by 12 is nothing but plus 1 only, kind of just 1. We want the remainder of this, sorry, not the remainder, yeah, divided by 12 plus 1, so it will be 1 only. Okay, so this is the formula to find the tithi.
नाउ यू माइट बी वंडरिंग कि मून इज 219 एंड दिस इज 334, इसमें से ये डिफरेंस किया तो 235 कैसे आया? दिस इज बिकॉज कि जब ये इसमें से ये तो माइनस नहीं हो सकता, तो व्हाट दे हैव डन इज दे हैव एडेड 360 डिग्री टू इट, 360 डिग्री टू मून्स लॉन्गिट्यूड, क्योंकि मून से हमें सन को करना है। तो इफ विल ऐड 360 डिग्री इट विल डज नॉट मैटर, इट मीन्स वी आर एडिंग जस्ट वन फुल सर्कल। ओके, so you will add when moon's longitude is smaller than the sun's longitude, we add 360 degree. So add 360 degree, then you will get the difference, divided it by 12, whatever answer you get plus 1, you will get the तिथि, मतलब वो डेसिमल में आएगा, उसको आपको डेसिमल को रिमूव कर देना है, जस्ट +1 एंड यू विल गेट द तिथि। ये आप दो तीन मतलब अलग अलग लॉन्गिट्यूड्स के लिए करके देखेंगे, यू विल गेट द आंसर। Okay, so this is how tithis are found out, this is how the our calendars find out the. Okay, so we are done with the tithi thing. So from next class we'll start with planets, we'll start with the nature of planets, how they behave with each other. Okay, in astronomy most of the things are covered, only retrograde thing is left, that I will cover when we are covering the planets only, I will cover that. सो या मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर कवर्ड, अगर कोई टॉपिक रह गया होगा तो वी विल कवर व्हेन विल बी डूइंग द प्लैनेट्स। सो एनी डाउट्स इन द एस्ट्रोनॉमी पोर्शन? सर थोड़ा तिथि का थोड़ा और एक बार थोड़ा डाउट क्लियर कर दीजिएगा। हाँ, ये तिथि एक्चुअली ओवरलैप का रीजन क्या होता है? इज इट मतलब टाइम, मतलब मून को कवर करने में 24 आवर्स से कम लगता है उसके चलते है ना? हाँ, ऐसा हाँ, कुछ है? ये बेसिकली मैंने आपको बताया ना, ये सन और मून की मूवमेंट पे है, दोनों की मूवमेंट पे, अब एक की मूवमेंट पे नहीं है, राइट? तो अभी क्या होता है, जी ये मूवमेंट कांस्टेंट नहीं है, जैसे मैंने बताया ऐसा नहीं है कि 24 घंटे में वो 12 डिग्री चल ही जाएगा, कभी कभी 23 घंटे भी हो जाता है, कभी कभी 25 घंटे भी हो जाता है। अब मान लेते हैं सुबह सनराइज था 6 बजे, ठीक है, जी सुबह सनराइज था 6 बजे। अब 6 बजे हमारी, जैसे आज 1 तारीख है, मान लेते हैं आज 1 तारीख है, और सुबह सनराइज हुआ 6 बजे, और 6:05 पे द्वितीया खत्म हो गई, 6:05 या 10 पे, लेट से 6:30 बजे, 6:30 बजे द्वितीया खत्म हो गई, ठीक है, बट 6 बजे तो द्वितीया ही थी, जी 6 बजे तो द्वितीया ही थी, तो आज भी द्वितीया ही होगी, जी आज द्वितीया ही होगी, 1 तारीख को द्वितीया होगी, क्योंकि 6 बजे द्वितीया थी, सनराइज के टाइम जो तिथि थी वही मानी जाएगी, ठीक है। जी अब 6:30 बजे तृतीया शुरू हुई, ठीक है, अब तृतीया पूरे दिन चली और वो सुबह 5 बजे खत्म हो गई, 5 बजे तृतीया खत्म हो गई, 5 बजे के बाद चतुर्थी लग गई। अब सनराइज मान लेते हैं अगेन 6 बजे ही हुआ, तो जी अगले दिन कौन सी तिथि मानी जाएगी? चतुर्थी। चतुर्थी मानी जाएगी। अब तृतीया क्या है, जी दोनों के बीच में हुई तो सही, मतलब ऐसा तो नहीं है कि तिथि होगी तो सही, लेकिन हम अपने कैलेंडर में नहीं लिखेंगे, क्योंकि सनराइज के टाइम पहले दिन द्वितीया थी, दूसरे दिन सनराइज के टाइम चतुर्थी थी, जी तो इसलिए हमें ऐसा लगता है वो तिथि बीच में से गायब हो गई। समझ में आया आपको? जी जी समझ में आ गया। है ना, वो बेसिकली वही है, क्योंकि कभी कभी टाइम, अब ऐसे मान लेते हैं कि जैसे, अब मान लेते हैं 25 घंटे की अगर कोई तिथि है, अगर 5:30 बजे द्वितीया लग जाती और अगले दिन 6:30 बजे तक होती, तो 6 बजे, मैं मान के चल रहा हूँ कि 6 बजे ही सनराइज हो रहा है एग्जैक्टली, तो 6 बजे पहले दिन भी द्वितीया थी, दूसरे दिन भी द्वितीया ही, समझ रहे हैं ना? तो ये बेसिकली सनराइज और सनसेट का टाइमिंग, और बीच में जो तिथि कितने देर के लिए पड़ रही है वो, ये भी मतलब बीच में बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे पड़ रही है कि सनराइज के आसपास ही तिथि चेंज हो रही है, तो वहाँ कभी कभी ये तिथि क्षय और तिथि वृद्धि
के केसेस आपको मिलेंगे। ठीक है, बीच में वैसे मैंने वो कवर नहीं किया है, अधिक मास का भी एक कॉन्सेप्ट होता है। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि एक जो हिंदू के कैलेंडर में अधिक मास हो जाता है, वो भी एक कॉन्सेप्ट होता है। और ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, बट मैं इतना सारा डिटेल में कवर करूँगा तो हम लोग कुछ कवर नहीं कर पाएंगे। और मैं मतलब आई डोंट नो कि ये आई थिंक मैं दिसंबर में रैप अप करना चाहता हूँ, क्योंकि जनवरी में मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ, या मैक्सिमम जनवरी फर्स्ट वीक तक मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि जनवरी एंड और फरवरी में मैं काफ़ी बिज़ी रहूँगा, तो तब मैं ये सेशन शायद नहीं ले पाऊँगा। तो इसलिए मैं अगर एक ही कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा, मतलब मैं पहले प्रिडिक्टिव पे आना चाहता हूँ, बिकॉज आई नो दैट इज़ द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग वाई यू हैव ज्वाइन द क्लासेस। सो इन केस यू विल नीड एनी थिंग, मतलब आपको कुछ भी डाउट होगा तो आई विल एक्सप्लेन, बट आई थिंक एस्ट्रोनॉमी वी विल कीप इट टू हेयर इट सेल्फ। जब जब हमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट लगेगा कि हमें उसकी ज़रूरत है, देन आई विल एक्सप्लेन दैट कॉन्सेप्ट। ओके, इसके अलावा पंचांग में नक्षत्र नक्षत्र के बारे में तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया था। योग और करण भी होते हैं, उनका एक छोटा सा मैं आपको पीडीएफ आई कैन शेयर, बट आई डोंट वांट टू स्पेंड मच टाइम ऑन इट। ठीक है, बिकॉज इन लोग का इनका ज़्यादातर यूज़ मुहूर्त के लिए ज़्यादा आता है, रादर देन प्रिडिक्टिव। प्रिडिक्टिव के लिए कुछ लोग करते हैं, जैसे एज आई टोल्ड, कुछ लोग तो सिर्फ इन्हीं के बेसिस पे प्रिडिक्टिव कर लेते हैं, बट इन जनरल पराशरी सिस्टम में दे आर नॉट यूज्ड मच फॉर प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, दे आर बेसिकली यूज फॉर मुहूर्त। चलिए ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, सो आई विल सी यू डे आफ्टर टुमारो। ओके, देन विल क्लोज दिस सेशन। थैंक यू। थैंक यू सर।